Now we know that how to get the base of the number, right? If the base of the numbers are given, then exactly we can convert the number into different bases, right? And we can equate the numbers. If I'm giving you question, what we have studied till date, 1 x 1 y with a base 8 is equals to 1 2 c 9 with a base 16, right? Then we have to find value of, right, x y c. तो तीनों के इंडिविजुअल वाले। फिर सी का सिंगल डिजिट वैल्यू ही है ना, 11 12 ऐसा। C is the number, बेटा। हाँ, तो हमें सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू x y की वैल्यू, हाँ। Abhijit, very good, बेटा। So, so Yes, today is National Mathematics Day. yes. I have one very good mathematical post of Ramanujan, right? So, like, I'll share that. Right? I'm very fascinated about that. Today is 22nd of December, right? And it was 1887, right? When he was born. So, like, from that number now, he has given a magic square, right? So you have to find values of c and x. X, Y, beta. C to number na. C is the number itself na. मतलब c is अच्छा अच्छा, वो सिस्टम वाला सी है। 16 given है ना बेटा। बेस 16 के लिए what is C? अच्छा, मुझे लगा सी भी आपने तो वेरिएबल लेके रखा। also c will be 12, right? तो सी वो 12 नहीं है। 12 है बेटा। 9C21. The number is 12C9. Wow, Prasam, very good. अगर बेस 16 में गिवन है तो वी नो दैट बेस 16 में, Sir, can we solve? हाँ, yes, yes, Emil. Sir, I am not done solving, so are you discussing the answer? Okay, बेटा, I'm not discussing. सर मेरा करेक्ट है क्या? मैंने देखा नहीं है उसका। हाँ, लग तो रहा है बेटा। गुड। Sir, I send the answer. Very good. Prasam, yes, Prasam, very good. Yes, Emil. Perfect. So this 10 is known as A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and the base is 60, right? सर So, 1 सेकंड रुकोगे? हाँ बेटा, एकदम, take your time. सर हो गया, भेज दिया। Very good. Sir, I have also said. Very good, Shreyaj, Ayan. Very good, everyone. Very good. सर एक मिनट। Arav,
Yes, sir. Start this one बेटा. The number is given एक 1 मिनट आंसर टाइप करके भेज रहा हूँ. हाँ बेटा 1 1 with a base 8 and 12C9 with a base 16. You have to find value of x and y, right? सर एक्स और वाई को भेजना है ना? x और y बेटा. c क्या होता है वो मैंने लिख ही दिया नीचे. जयेश वेरी मेरा गुड. सर आंसर सही है सही क्या? है ना? वेरी गुड अक्षय. नहीं बेटा, बेस अगर 8 है तो नंबर विल बी ऑलवेज लेस देन 8 ना बेटा. सॉरी सर. आपने आंसर निकाल लिया है लेकिन कुछ वो गड़बड़ है, उसको देख लो एक बार. आपका आंसर आ चुका है बेटा. वेरी गुड. तो डिजिट वो तो बिट आ गया. यस. वो तो डिजिट. रिद्धिमा राइट डाउन योर आंसर. कार्तिक दिया 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 आंसर. ओके. सो this number, right? First one, 1 1 y, right? We can write this as y plus 1 into 8 plus x into 8 square plus 1 into 8 cube plus 1 into 8 to the power 4. And this must be equal to 9 plus c into 16 plus 2 into 16 square plus 16 cube. Okay. And from 64x plus y equal to 193 आएगा. 64x plus y y equal to 193. 193, right? Well, like this, I'm taking this from Shreyaj. Thank you, Shreyaj. क्या सभी के यही आए हैं? हाँ सर. Everyone is getting this one, right? सर जब x की वैल्यू 3 होगी तभी y की वैल्यू. बातें मेरे पास है क्या क्या जो हमारे पास गिवन है x and y. Obviously x y must be less than 8. ये मेरे पास होना चाहिए, right? अब अगर मैं ट्राई करूं ये नंबर 64x, राइट? x 0 पर काम नहीं करेगा, 1 पर भी काम नहीं कर रहा है, राइट? 2 पर भी काम नहीं कर रहा है, 3 पर काम कर जाएगा नहीं. सो y हमें सिंगल डिजिट चाहिए. क्योंकि एक्स वाई तो हमारे पास लेस देन 8 है, राइट? तो x इज इक्वल टू 8, देन सॉरी x इज इक्वल टू 3, then 192. So y is equal to 1. So exactly you are getting the value of x and y. Very straightforward question. सर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 12C9 को बेस 10 में कन्वर्ट करें और फिर 8 से कर लें उसको? कर सकते हैं बट लाइक ये अगर ध्यान से देखो तो ये तो आपने वही किया ना, बेस 10 में ही तो दोनों कन्वर्ट हुआ, दोनों नंबर जो आपने इक्वेट किया. यहाँ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ सर कि बेस 10 जो 12C9 बेस 16 में उसकी बेस 10 में वैल्यू निकाल के 8 से डिवाइड करें और फिर वो जो रिमाइंडर आएगा उससे नंबर बना लें. उस कर सकते हैं बेटा, बट आई गेस ये आप थोड़ा आसान है ना, क्योंकि वहां पर फिर मेरे को बहुत सारे कंसिडरेशन में भी लेने होंगे कि जब भी 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो 8 के फैक्टर्स को मेरे को पास ऑन करना पड़ेगा, बट कर सकते. ओके. 193 कैसे है? कैलकुलेशन है बेटा. जैसे ये 8 आ जाएगा, ये 8 क्यूब कितना हो जाता है? 512. 8 सर वो 16 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा. हाँ, 8 टू द पावर 4 है मेरे पास. 2 इंटू 16 स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया 8 क्यूब, और 8 क्यूब ये कैंसिल ही हो रहे हैं. 8 रेज़ पावर 4 16 क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा. 8 टू द पावर 4 और 16 क्यूब भी कैंसिल हो जा रहे यस हैं. सर, वही हो रहा था. अच्छा, मेरे पास कितना कितना, ये केवल 8 बच रहा है, फिर राइट? दूसरे ये में 9 9. केवल बच रहा है c इंटू 16, और c की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 12. मतलब 12 इंटू 16 प्लस 9 माइनस 8, 192 आता है. 190. ठीक है ना? ओके उषा, कार्तिक, ओके?
उजान ओके बेटा, फिर से एक्सप्लेन करूं या ठीक है ये? सर इस स्टेप में मुझे y और 9 क्यों आया? 9 प्लस c इंटू 16 वो वाला चीज मुझे नहीं समझा बस। 9 विच वन? सर 9 प्लस c इंटू 16 वो वाला पार्ट। 9 प्लस ये नंबर को बेस 1 टू C9, 1 टू C9 विद बेस 16, ये गिवन है ना। इसको बेस 10 में चेंज कर रहा हूं, तो 9 का मतलब है यूनिट प्लेस 16 टू द पावर 0 है इसका मतलब। जस्ट इसके पहले का जो नंबर है C, तो C इंटू 16 टू द पावर 1 जाएगा। देन उसके पहले का नंबर है 2 इंटू 16 का पावर 2 जाएगा। देन उसके पहले का नंबर 1 इंटू 16 का पावर 3 जाएगा। जो बेस नंबर होता है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं 5124 विद बेस 10, तो क्या लिखते हैं इसमें? 4 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 क्यूब। हाँ, उसी को लिखने का जो वे है, राइट, 5124 विद बेस 10। उस बेस 10 को हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग, तो अगर बेस 16 है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यूनिट प्लेस पे 16 टू द पावर 0 दिया, 10th प्लेस पे 16 टू द पावर 1 दिया, 100, लाइक कैरी ऑन करते हैं, राइट। उसी को फिर अब सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू हमने ऊपर देखा कि ये 12 होते हैं, राइट। यस जयेश। सर तो समझिए सर, 10 नंबर्स के लिए तो हमने नंबर ले लिया और फिर उसके बाद ABCD जी के। अगर बेस 36 से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे? जैसे बेस 38 ले लिया। बेटा A1 ले लेंगे, उसके A1 A2 A3 नाम दे देंगे, नाम तो अपने ऊपर है ना, अच्छा। ठीक है ना। A1 A2 A3 कर दूंगा, राइट। A99 तक 100 तक चला गया, जितना भी चाहिए वहां चले जाएंगे, राइट, ठीक है ना। एक सर। ओके, नाउ so in this what we are doing, right, एक कन्वर्जन जो मेरे पास है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, राइट। 123 with a base 5 is equal to x8y। इस बार मैंने वेरिएबल को 2 रखा और दोनों वेरिएबल कुछ इस तरह से रखे कि लाइक यू कैन गेट समथिंग। What are the possible values of x and y are possible? सर एक से ज्यादा है क्या? कोशिश करो, निकालो ये। अमोक, आरव, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। अक्षज, आर्यन, सिमिल, Yes. रिद्धिमा, कार्तिक, दिया, सर और आएंगे क्या? भेजा आपको, इतने ही आने चाहिए सर। हम्म, हम्म, यही दो आएंगे। नहीं सर। और कोशिश करो, थोड़ा और सोचो, सिमिल। हाँ, इसमें आंसर करेक्ट। यस यस यस, मैं इंटीजर बोल रहा हूँ ना, इंटीजर में है, फ्रैक्शंस वगैरह में, लाइक एंड सर मेरा सही है क्या पहला आंसर? हाँ, और भी होंगे पॉसिबल अक्षर, और भी होंगे बेटा पॉसिबिलिटीज। पर मेरा करेक्ट है। ठीक लग रहा है अनुष्का आपको? रील उसके सर बाद मेरा करता है। हमें प्रसन्न, हमें करस्पॉन्डिंग्स देने पड़ेंगे बेटा, किसके रेफरेंस में कौन आ रहा है ना। आपने जो लिखा है सही है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या, राइट। अब रजीत बेटा, लाइक फ्यू मोर ऑप्शंस आर पॉसिबल ना। हाँ, जय इसने अच्छा तो लिखा, 4 ऑर्डर। ऑप्शन है ना। सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं क्या बोल रहा था जी का आंसर देख के। हाँ, सर क्या हम नेगेटिव्स में आंसर दे सकते हैं क्या अपना? नेगेटिव नहीं कहा मैंने, पॉजिटिव मैंने बोला बेटा। हम्म, नहीं, करस्पॉन्डिंग आंसर मैं बोला था कि 1 के अगेंस्ट कौन आएगा, 2 के अगेंस्ट कौन आएगा, दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट।
तो इतनी वैल्यूज ठीक है ना? हाँ, वैल्यूज ठीक लग रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड पर्सन, next. सही लिखा बेटा। सर भेजा। जयेश, वेरी गुड। सूरज, सर सारे वैल्यूज भी लिख के दूं? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। रिद्धिमा, कार्तिक, दिया, राइट डाउन द आंसर। आर्यन, वेरी सर गुड। सही है आंसर्स। अमोघ, वाओ बेटा, वेरी गुड। थोड़ा और, थोड़ा सा और। अमोघ। सर अक्षर, मेरा सही है क्या? अक्षर का आंसर। कुछ और ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं शायद। सर सर मैंने एक और आपको सर एक और आएगा। हाँ शायद। अभिनव, मोर ऑप्शंस आर पॉसिबल बेटा। सर आपको भेजा, आप चेक कर सकते हो। हाँ, कर रहा हूँ ना। झील ने अभी इस बार बहुत अच्छे से लिखा, वेरी गुड। सर एक दो ऑप्शन रिजेक्ट करने पड़ेंगे, मैं रीसेंड कर रहा हूँ अपना आंसर। सर भेज दिया। ओके ओके, टेक योर टाइम एवरीवन ना। कोशिश करो एक लास्ट अच्छा सा प्यारा सा आंसर सर लिखने का। और नहीं आ रहा। नहीं आ सर रहा, मैंने अभी कर, अभी सर कर। भेज दिया। वेरी गुड। सर एक और भेजा। गुड। सब एक साथ भेजने का। गुड अभिनव। सर वेट कितने सर सेट ऑफ मैंने वैल्यूज पॉसिबल है? देखता हूँ, अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा बेटा। सर 3 सेट्स आ रहे हैं, मुझे आपको भेज दिया। सर अभी 3 ही आएंगे। सी, हमारे पास जो नंबर गिवन है, राइट, इसमें दो तीन चीजें हमें क्लियर रहनी चाहिए। जैसे ये तो ऑब्वियसली बात है, 3 + 2 × 5 +1 × 5², दिस नंबर इज गिवन एंड दिस इज 8 + x × 8, राइट, विथ सर x × y होगा ना, बेस y। x × y, मेरे पास जो नंबर गिवन है, राइट, एंड y⁻0 ये, राइट, बेस y के लिए। ठीक, यहां से मेरे को मिल गए xy की वैल्यू जो आ रही है, 30। राइट, 3030। एंड एक बात और आनी चाहिए, x मस्ट बी लेस देन y, राइट। 8 ऑल्सो मस्ट बी लेस देन y। ठीक है ना। ये एक चीज तो यहां से दिख रहा है, राइट। एंड यहां से ये भी मुझे दिख रहा है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन 8। ये भी दूसरी बात दिख रही है, राइट, क्योंकि अगर बेस का नंबर मैंने y रखा है तो y तो बड़ा होना ही चाहिए 8 से, राइट। ये दो बातें तो मेरे को यहाँ पर ठीक ठाक से नजर आ रही है, राइट। कि अब ये दो नंबर्स को और ये दो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, राइट, आई हैव टू गेट द प्रोडक्ट्स। हाँ, सर सारे फैक्टर्स लिख के पेयर बना सकते हैं। कर सकते हैं बेटा, बट ये दो फैक्टर हमें ख्याल पे रखने हैं। तो x लेस देन दिस, राइट, 1 30, 2 15, 3, 310। राइट। और भी हो तो सकता है मेरे पास कि अगर मैं इसे सर 6 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 y 6, राइट। बट 5 6 में प्रॉब्लम क्या है कि y की वैल्यू 6 आ रही है, जो हम लोगों ने यहाँ की कंडीशन जो दिया है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ये मेरे को गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज मैं देखूँ तो ये तीन ऑप्शन तो मेरे को साफ साफ नजर आ रहे हैं। इज दिस ओके? यस सर। ओके एवरीवन, कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? सर आई गॉट 310, आई सेंट यू 310। राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। मैंने 560 लिख दिया। हाँ, आई होप। सर मुझे लगा 16 तक ही यूज कर सकते हैं। क्यों बेटा? वो तो हमने अपने बेस के लिए रखा है, कितनी भी कर सकते हैं। आप क्या मजाक कर रहे हो? आप क्या बोलते हो? जो गैलेक्सी के डिस्टेंसेस होते हैं वो कैसे हम लोग नापते हैं? मुझे, लाइट ईयर। लाइट ईयर बेस क्या होता है? अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड क्या होती है? अप्रोक्सीमेट, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। राइट, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो बेस वो आप, एक व्हाट इज द बेस इन दैट केस? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, राइट। बहुत बढ़ सकता है ना। सो एंड ये तो मैंने जो आप यूज करते हो वो एग्जांपल दे दिया, इस तरह के कई सारे हैं। आपने अगर, राइट, जो साउंड साउंड सिस्टम होता है जो हमें सुनाई देता है, राइट, हर्ट्ज में हम लोग बात करते हैं, वो साउंड सिस्टम सिस्टम अलग होता है, उसके बेसिस अलग होते हैं। लाइक आप रिलेट करोगे ना तो बहुत जगह पर आपको दिखेगा, हाँ ऑलरेडी हम तो ये काम कर ही रहे थे, राइट, और ये काम तो हो ही रहा है, एंड बहुत बेसिक में हम लोग जानते हैं कि कैसे इस पे वर्क करना है। ओके,
एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज कैमरा अपने अपने ऑन रखो बेटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां से भी आते रहते हैं। अंडर रूट ऑफ 41 with a base b is equals to 5 with a base 10, right? इस बार हम लोग आ रहे हैं कि अगर स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट और इस तरह के कुछ नंबर्स मेरे पास दिए हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, राइट? सो लेट्स ट्राई। ये बहुत है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन, बट एक बार ट्राई करके इसे भी देख लेते हैं। सर डेसिमल ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट के लिए? डेसिमल अभी हमने नहीं पढ़ा उसके पहले, इसलिए ये क्वेश्चन दे दिया बेटा, ना कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी जस्ट इसके बाद डेसिमल भी बताऊंगा, और डेसिमल के पहले ही इसको खत्म कर सकते हो आप ना। सर अगर दोनों साइड बेस है तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो सर बेस का स्क्वायर हो जाएगा? बेस का नहीं होगा बेटा, केवल नंबर का स्क्वायर होगा। हाँ सर हो गया। सर बेस 6। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। अमोघ, आरव, सिमिल, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। दिया, कार्तिक, रिद्धिमा। सर B6 है। वेरी गुड। Squaring both side, right? Squaring both side. So what you are getting as 41 with a base is 25 with a base 10, right? So b to the power 0 into 1 plus 4 into b to the power 1, that must be equal to 25. That's it. B is nothing but 6 only. Okay. Yes. Right. Okay, everyone. Clear? Right? Now. सर तो अगर जब स्क्वायरिंग करते हैं तो हम बेस चेंज नहीं करते दोनों तरफ? बेस चेंज, स्क्वायर में बेस क्यों चेंज करते हैं बेटा? स्क्वायर और अंडर रूट तो अपना ऑपरेशन है ना। कोई दो नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो बेस क्यों चेंज करोगे आप? ना, 14641 with a base 9. Find fourth root of this. सर आंसर डेसिमल डिजिट निकलेगा। देखिए पहले ट्राई तो करें, इसका इररिलेवेंट हो जाते हैं। ट्राई तो करें, सिंपल क्वेश्चन है। सर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने का है? हाँ, आंसर दे सकते हैं बेस 10 में, डेसिमल में। वेरी गुड। डन। सर सोच रहा हूँ। आज आप लोगों का टेस्ट है जो हम लोगों ने ग्रेटेस्ट मीजर और फ्रैक्शन पढ़ा था उस पर ना। वेरी गुड विद्यमा। बेस 9 एंड बेस 10, वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, बहुत अच्छे। सर बेस 10 का आंसर बताना है ना? हाँ, बेस 10 के लिए। सर मैंने बेस 10 का आंसर भेजा, मैं सही है क्या? अभी देख लेते हैं। आप दोनों में आंसर अगर लिखे ना, बड़ा अच्छा से रिद्धिमा ने आंसर लिखा कि बेस 9 के लिए ये आंसर, बेस 10 के लिए ये आंसर है। वेरी गुड। Sir, is my answer correct? यस 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 एवरीवन, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। सर सही है क्या बेस 10 का आंसर? अभी देख लेते हैं बेटा,
तो पहले तो इसे बेस 10 पे ही हम लोग दोनों कन्वर्ट साथ में करें, राइट? तो दैट दिस इज द बाइनोमियल, इफ यू विल सी दोनों द मेरे आंसर सर भेज दिया। वन, अगर अगर ध्यान से देखो तो ये नंबर क्या चल रहा है, सर 1 11 का 4 4 6 4, सर 11 का पावर है। right? So if I'll see this, I can say this is, लास्ट से मैं लिखूं 1 प्लस 4 इंटू 9 का पावर 1 प्लस 6 इंटू 4 का, सॉरी 9 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9 क्यूब प्लस 1 इंटू 9 टू द पावर 4, सर right? तो यहाँ पे हमें एक्सपांशन दिख रहा है। Very good. So this is 9 plus 1 to the power 4. And 1/4 of this is only 10 when I'm saying this having the base 10, right? Base 10, then you are getting number 10. What if I'm saying the base is 11, right? 10 with a base 10 is equal to, what is the number when base 9? सर 11। सर 11 Right? सर It's okay. Now this 9 base per 9th one is a 10, and the next number to this will be 11. So this is the 11 with a base 9. Is this okay? Very good, everyone. आप सबके सही आंसर सर होने के बेसिस में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। हाँ, सर बेसिस में पूरा कैलकुलेशन नहीं होता है। राइट, हाँ, बट परफेक्ट सिंपल क्वेश्चन एकदम, नहीं? हाँ सर। Nine. Now the next one. Find number of zeros. ये पहले भी आपका किया हुआ है, इसलिए मैं दे रहा हूं। In 2000 factorial with a base 34. अक्षय, आपने जो बोला था बेटा, देख बेस 34 कर दिया मैंने ना। आपको वेरिएशन ख्याल में रखने हैं, वेरिएशन पर वर्क करना है। सिमिल अमोक प्लीज बेटा। 2000 फैक्टोरियल बेस 10 में उसको बेस 34 में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, या फिर मतलब 2000 सर बेस 10 में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं या बेस 34 में नंबर ऑफ जीरो? 34 में बताने बेटा नंबर ऑफ जीरोस। हाँ। उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, बेस 10 का तो नंबर मतलब रह ही नहीं जाएगा ना। दिस इज द फैक्टर। 2000 फैक्टोरियल बेस 34 में है कि बेस 10 में? 2000 factorial, right? 2000 factorial is given with a, like the number is given 2000 factorial, and in this 2000 factorial we need how many zeros are there with a base of 34. You have to count with the base 34 only. Well, 2000 factorial is given as a base 0, right? Base 10. The number is 1 into 2 into 3 up to 10, फिर 11, 12, 13. Right? That's you are asking about it. सर इसमें आंसर Number is 1 into 2 into 3 up to, right, 10, then 11, 12, 13, up to 2000 it's going. Right. Simil, nahi beta. No, 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 no. Aryan, Aryan, where are you? Arey, wow, very good. Very good. Wow. Perfect. Perfect. Very good. Anushka. Check, 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 check. फैक्टोरियल मीन्स, याद है ना बेटा, पहले भी हमने किया है फैक्टोरियल में। लाइक इफ आई एम राइटिंग सर फैक्टोरियल, एक मिनट, सर एक मिनट। 1 into 2 into 3 into 4 into 5. If I'm writing factorial, 7 means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. Means the number till सर सही है क्या मेरा आंसर? na product till that number. सर मेरा आंसर सही है क्या? नहीं, मैं करूं क्या? सर एक मिनट। सर मैंने आपको आंसर भेजा। नहीं है विजय, नहीं चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ बेटा, पर सम नहीं, बहुत दूर है। सर मुझे लेक्टर्स के उसमें आंसर आ रहा है। क्या फिर से बोलना एक बार बेटा? मुझे लेक्टर्स के उसमें आंसर आ रहा है।
लेटर्स में नंबर ऑफ जीरोस के लिए हाँ सर। मतलब उसे बेस 10 में बता दो कितने हैं वो। So we have to write the number of zeros in base 34. बेस 30, base like base 0 ना base 10, या how many times you are getting this? तो लाइक हमें पहले 2000 फैक्टोरियल में जीरोस निकालना है, उसे बेस 34 में कन्वर्ट करना है 2000 फैक्टोरियल 34 के बेस में। फिर से एक बार। हमें 2000 फैक्टोरियल में बेस 10 में जीरोस निकाल के फिर बेस नहीं 34 में कन्वर्ट नहीं करना है। मतलब डायरेक्टली मुझे 34 पर जाना है। वाह, आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। आई आई डोंट थिंक इट। आर्यन प्लीज गो अहेड बेटा। आर्यन ने परफेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही What, sir? कम समय में इसने सही किया, तो आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू आर्यन। आर्यन प्लीज गो अहेड बेटा। आर्यन, आर यू देयर? कैन यू एक्सप्लेन? You are mute. You are on mute, beta. Yes, sir. What are you saying? Just आपको भेजा है if you want to explain, you can explain this. Okay, sir. तो मेरे को 58 फैक्टोरियल आ रहा है और 1 minute. 28 बच रहा है। 28 का क्या करूं? Let me open that page that I did the solution. Yes, sir. So what I did that I prime factorized the base. Okay, 17 into 2, 34. First I did that. Then I determined the limiting prime factor. Okay, and third, I trailed the zeros in the base 34. And then I got 1, 2, 3. The most simplest explanation that I can give. Very good. Very, very, very good. वो 6 आएगा, 123 आएगा। सर मैं 17 क्यूब कैसे सर? 17 क्यूब आउट ऑफ द पिक्चर हो जाएगा। 0 कर दूंगा बेटा। Right. So first one, how much you are getting? 117 point 7 something. फिर Right? 6, 123। And 17 square 17 से divide किया तो that's 6 times. Then 0 times 120. So you have not to divide with 34 ना, ये तो पहले भी बात हो गई है। Right? You have to divide with the twos are to more than 123 times in this. Right? You have to see how many 17, the prime factors are there, right? So how many prime factors are there? These numbers are there on. Right. सर हम लिमिटिंग फैक्टर फिर से उसकी लिमिटिंग 123 factors we are getting in this. Right. So total number of factors we are getting is 123. Why we are dividing with this 34? Because we are saying कि its base will be 34. Then after every 33 number, we'll get 110. Then next 33 number will get second 10. Then so on. And in between, we'll get the mid of the number, right? We'll get the 17. This 17 is the number that will again giving you 10, right? 17 will work as a 5, right? जैसा 10 में 5 यूज होता है वैसे ही 34 में 17 वर्क कर रहा है. So now we are thinking कि how many 70 factors of 17 are possible, right? अगर मेरे को 17 के फैक्टर्स चाहिए तो मैंने 17 के फैक्टर्स के लिए बोला कि ओके हाउ टू फाइंड दिस, तो 2000 by 17 plus 2000 by 17 स्क्वायर एंड 2000 by 17 क्यूब. बट ऑब्वियसली जैसे बताया जयेश ने भी कि 17 क्यूब के तो फैक्टर इससे नहीं है, तो इतने मेरे पास फैक्टर होने चाहिए. इज दिस ओके एवरीवन? क्या पंगा आ गया था, क्या गड़बड़ आ गया था? एनीवन? Sir, I think I solved this question that Pathfinder book. वेरी गुड. किसी को कहीं दिक्कत? एनीवन? एनीवन? ओके नाउ? राइट. नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन. ओके. सर इसमें हम टेंस के लिए देख रहे हैं, लेकिन बीच में तो हंड्रेड्स भी आएंगे ना, जिसमें 2 zeros आएंगे। So that's the reason you are dividing that by 17 square. I see, I see. For 17 square, you are getting 2. If it's coming for 2 zeros, na, so that's coming in that.
Maybe it could be possible कि it's coming from 17 cube. That's the reason we are doing with 17 cube, but fortunately we are not getting any number from that. Right? Okay. Now, so if you all are comfortable, right, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, अगर आप लोग, मैं पॉइंट्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन तो काफी सारे हैं मेरे पास जो हम लोग को प्रैक्टिस करने हैं, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग पॉइंट्स के बारे में भी आ जाते हैं, राइट। फ्रैक्शंस अगर मेरे पास है तो हाउ टू गो विद द फ्रैक्शंस, राइट। इफ आई एम सेइंग द नंबर इज गिवन एज 0.42 with a base of 5. So how we can write this, right? Right, 0.42 with a base 5. So in this case, right, what we were doing, कि अगर मेरे पास 4, 1 था या something is there with a base 5, so I have to write down 1 into 5 plus 4 into 5 square. Means first time you are writing 5 to the power 0, in the second one you are writing 5 to the power 1, right? So first term is taking you 5 to the power 0, second term is taking you 5 to the power 1. But when we are going with the points, right, when you are going with the point, you have to go with 4 by 5 plus 2 by 5 square. Right, this will be for base 10. Right, this will be for base, right, when you are dividing this, right. So number is something like this, right. So if I'm writing 4, 1, 2, 1, right. So what I can write for this? 4 by 5 plus 1 by 5 square plus 2 by 5 cube plus 1 by 5 to the power 4. ये बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये बेस को, राइट, बेस 5 मेरे पास गिवन है, राइट। सो जस्ट 5 से जो डिवीजन होते हैं, द नंबर्स इज कन्वर्टिंग टू, राइट, अपने आप में नंबर्स हमारे वर्क करते हैं, राइट। तो नंबर को कैसे कन्वर्ट करने हैं या नंबर्स कैसे आ रहे होंगे आपके पास, या जो नंबर्स आपको निकालने हैं, जैसे आई होप दिस इज द सिंपल थिंग। सर हाँ, फिर अगर हमारे डेसिमल जैसे मतलब रिपीटिंग होते हैं 0.43333 वैसे उसके लिए कैसे करने का? तब तो डिवाइड करते जाओ बेटा, जीपी सीरीज बन जाएगा। अच्छा हाँ सर हाँ। इफ इट इज रिटर्न 0.33333 with a base 5. So this is 3 by 5 plus 3 by 5 square plus 3 by 5 cube up to infinity, right? I can take out 3 common, or this will be 1 by 5 plus 1 by 5 square up to infinity. What is the formula for this GP series, Vijay? A upon 1 minus A by r. r minus 1. है, infinite है ना, a upon 1 minus r, right? 3 by 4. Okay. ओके सर। Right? So only the same thing you have to do, the calculation part, right? और सर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 1 by 5 with base 2, ऐसा कैसे? 1 by 5 तो आता ही ना बेटा, वही तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना, 1 by 3 with a base this. बट सर समझो कोई ऐसा नंबर है जिसमें हमें बिना डेसिमल एक्सपांड किए अगर हमें करना हो तो? भी दिखा, एक क्वेश्चन ही लेके दिखाता हूँ, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जो दिक्कत हो जाए। 7 by 60 मैंने दिया with a base 6. So what is this number? Right, अब इसे मेरे को लिखना है 7 by 16, जो लाइक जयेश ने बोला कि सर ऐसा है, अब कैसे निकालूं, इसमें कैसे ये जा रहा होगा, वो तो आपको दिख रहा था, आपने जल्दी जल्दी कर दिया, पॉइंट में पहले से लिखे हुए थे। अब 7 by 16 को मैं लिखूंगा, वो तो बहुत ही गंदा मेरे पास नंबर जा रहा होगा, तो हाउ टू कैलकुलेट दैट? तो क्या करूंगा मैं, राइट, क्या करूंगा मैं, एज्यूम कर लूंगा, तो चलो 0, A1, A2, A3, A4 ये अपना चला जा रहा होगा, राइट, ऐसा नंबर चला जा रहा होगा AN तक, राइट, कहीं ना कहीं एंड करेगा ही, क्योंकि नॉन रिपीटिंग, राइट, रिपीटिंग वाले होंगे तब भी एंड मुझे पता है, अगर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर रहा होगा, मैं मानते हुए इसको लिख दिया। अगर नहीं कर रहा हो तो इनफाइनाइट सीरीज होगी, तब तो और मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। नाउ इफ यू कैन सी 7 by 16 the base 6 is A1 by 6 plus A2 by 6 square plus A3 by 6 cube plus A4 by 6 to the power 4 and so on. Is this okay? Now 1 by 1 I have to go for this. कैसे जाऊं?
मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6 into 7 by 16 is equal to a1 plus a2 by 6 plus a3 by 6 square plus a4 by 6 cube and so on, right? And 7 into 6, 42 by 16 क्या आ जाएगा? इंटीजर पार्ट क्या आएगा? 2 सर 2 आ जाएगा। 2 प्लस क्या बच गया आपके पास? अच्छा तो वो A2/6 वो सब सर 2 plus 10/16 आएगा। वेरी गुड, 10/16 आ गई, इसे भी कैंसिल कर लूंगा मैं। और यहाँ पर a1 प्लस a2/6 प्लस a3/6 स्क्वायर ये लिखा हुआ है। क्या बोल सकता हूँ, कोई नंबर हमारे पास मिल गया, कुछ आ गया क्या, कुछ कैलकुलेशन मिल गया क्या? सर A1 की वैल्यू a1 की A1 वैल्यू, राइट। अब a1 को मैं कैंसिल कर लिया, मतलब a1 हमारे पास आ गया, अलग कर लिया। फिर मैं लिखता हूँ इसे, राइट। सर हम्म सर अगर A2 A3 वो सब में से कोई 6 से डिविजिबल हुआ तो नंबर अपने आप आ जाएगा बेटा ना, नो वरी, राइट। वो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, मतलब उससे नीचे वाले नंबर ही आएंगे ना, क्योंकि हमने उसी तरह से नंबर्स पूरे लिए है ना। क्योंकि अगर बेस में ले रहा हूं तो बेस का क्या मतलब है, वो सब के सब नीचे नंबर आएंगे। सी, अगर मैंने 5 क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू a1 प्लस a2/6 प्लस a3/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, जहां तक भी जा रहे हो नंबर, राइट। फिर क्या करूं? सर A1 हट जाएगा ना? अब a1 हमने निकाल लिया है तो हटा दिया a1 को। अब a2 से अब क्या करना चाहिए बताओ? फिर वापस 6 मल्टीप्लाई करना है 6 से 30/8 इज इक्वल टू a2 प्लस a3/6 प्लस a4/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या जाएगा? सर इसका इंटीग्रल पार्ट 3 राइट, प्लस 7/8 6/8 by 8 is equal to a2 plus a3/6 plus a4/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। a2 की वैल्यू 3 आ गई, राइट। अब ये नंबर देखो रिड्यूस होता जा रहा है अपने आप, नहीं, ये आ गया 3/4, a3/6 प्लस a4/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। फिर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या जाएगा? 18/4 इज इक्वल टू a3 a4/6 प्लस a5/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या गया? 16 2/4 1/2 चला गया, राइट। a3 की वैल्यू 4 चली गई, a4/6 a5/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू a4। आगे की वैल्यूज क्या आ रही है, यही मुझे दिखाना था। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट आपने जो बोला बेटा वो काम कर सकेंगे, राइट। एक बार जल्दी सर से, इज दिस ओके एवरीवन? रील, प्रसम, तो सर इससे यस कंक्लूजन क्या आया? कि हमारे पास नंबर आ गया ना 7/16 विद बेस 6 को लिखने का क्या तरीका रहेगा? तो मैं बोल सकता हूँ वो जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था, एक और स्टेप था वो दिख गया। तो ये लिखने का तरीका रहेगा, a1 की वैल्यू क्या आई थी, मतलब पॉइंट फॉर्म में आप कैसे लिख रहे हो 7/16 विद बेस 10 को? ओके तो ये बस A4 तक होगा। हाँ, a4 तक ही जा रहा है, और उसके ओके आगे जी पे जा रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। हाँ। सो अब इस पर बेस क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात, राइट। ये तो इन्होंने बोला तो मैं बोला कि चलो एक करके पूरा वर्किंग दिखाता हूँ, राइट। बट काफी सारे क्वेश्चंस हमारे इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसी पर बेस एक क्वेश्चन मैं अभी देने जा रहा हूँ। ओके एवरीवन, डन? सर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो? ऊपर दिखाया बेटा, अभी जीपी सीरीज बन जाएगी नहीं इनफाइनाइट, मतलब और नॉन टर्मिनेटिंग है। वो चलता जाएगा। इरेशनल नंबर जैसे होते तो मैं कभी एंड कर ही नहीं पाता हूँ, वो अपना चलता जैसा है वैसे ही ये भी चलता जाएगा, ठीक है सर। राइट। सी नाउ, a rational number is written with a base 8 as AB point CD with a base 8, and this is equals to
BB dot BA with the base 12, right? Find possible values of A, B, C, D. फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ, चारों के पॉसिबल वैल्यू निकालना है। Yes. सर वो बेस 12 में बी वेरिएबल है या फिर नंबर है? ये सब वेरिएबल है बेटा, ABCD। ओके सर। नहीं तो बेस 8 में वो वाला B नहीं लिख पाऊंगा ना, आरव। हाँ सर। लेफ्ट साइड में वी कांट राइट दैट। बट क्वेश्चन पूछने के स्टाइल और भी अच्छे होते हैं, राइट? यहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर की अंडरस्टैंडिंग जो समझ ली है, राइट? इसमें ना PNC को मिला देता। PNC मिलाने के बाद थोड़ा क्वेश्चन काफी लाइक अच्छा बन जाता। कितने नंबर्स होंगे, राइट? वो डिविजिबल कितने तरीके से होंगे एंड ऑल। सर पॉसिबल वैल्यू। यस, पॉसिबल वैल्यूज। वेरी गुड, सर वो सीरीज में है, वो सीरीज में लाइक वेरी गुड। सर ए भी मल्टीप्लिकेशन में है, ए अलग डिजिट है और बी अलग डिजिट। मजाक कर रहा है ना? सर पूछ रहा हूँ क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ए भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन नहीं, अरे वो पॉइंट है। अभी जो डेसिमल सिखाया वो है। AB पॉइंट CD एंड BB पॉइंट B। मतलब नंबर, यू अंडरस्टैंड ना? मैं जैसे लिख रहा हूँ 20। मैं समझ गया, समझ गया। सर करेक्ट है क्या? दो आंसर आए हैं और दोनों अलग हैं। अभिजीत के भी आए हैं और अनुष्का के आए हैं, दोनों के आंसर हैं, दोनों के अलग हैं। तो आई डोंट नो, जस्ट आई हैव टू सॉल्व। या एक बार आपको ट्राई कर लो, ये मौका मिल जाएगा शायद। सर बेस 10 में है मेरा वाला। हाँ, बेस 10 पे ही हमारे आएंगे नंबर्स। सर मुझे तो बहुत बड़ी इक्वेशन। 2 मिनट और।
मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट 2 मिनट Yes, sir. सर 2 मिनट। ओके, अच्छा पिछले वाले गलत थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया था ये वाले में। अब मैच कर रहे हैं। यस अनुष्का। गुड 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 गुड। राइट, बहुत बेस है, लेकिन आईओक्यू में एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं। राइट, आरएमओ में भी कभी क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस रहेंगे। राइट, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एंड कभी कभी यही नेगेटिव में भी हमारे पास हो सकता है कि हमें Sir, can you tell us like all properties of the squares in detail and something like that? Because next year is going to be a square number. which one? 2025 is 45. We'll do it in all the prime factors, or everything will do in. No worry. Sir, because every year they ask questions about that year. 100%. 2025 is a very good number. Right, so lots of properties are there, right? तो 45 स्क्वायर। January first week we'll do that only. सर ऐसे तो 2026 बहुत बेकार नंबर होगा क्यों? सर, उसके फैक्टर्स ही बहुत कम है। हर एक नंबर्स जो होते हैं उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी रहती है बेटा। सर पर फैक्टर ही नहीं होंगे ना 2026 के ज्यादा तो। फैक्टर नहीं होंगे, बट हो सकता है कुछ स्क्वायर का सम वहां पर आ रहा हो, क्यूब का सम आ रहा हो, 4 डिग्री का सम आ रहा हो, 5 डिग्री के। सर 2025 की एक और खास बात, उसके डिजिट्स का सम भी परफेक्ट स्क्वायर है। खुद एक परफेक्ट स्क्वायर, डिजिट्स का सम भी परफेक्ट स्क्वायर। वो तो 45 स्क्वायर जैसे हुआ बेटा वही हो जाएगा ना, 5 + 4 9 हो गया। ओके, डन। सर 2 मिनट 2 मिनट। तो लेट्स स्टार्ट करूं? Yes, sir. सी दिस इज 2 मिनट। ओके। Just I'm preparing now what I have to do, right? I'm not giving hint now, just I'm preparing. यस अनुष्का, प्लीज गो अहेड। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन और भी करवाने हैं, राइट? तो प्लीज 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 ना स्टार्ट करते हैं। अनुष्का प्लीज गो अहेड बेटा, प्लीज सर एक्सप्लेन। हाँ, तो मैंने तो कन्वर्ट किया बेस 10 पे, लाइक वो बेस 8 वाला। तो मुझे लाइक 4604A प्लस 72C प्लस 9D इज इक्वल टू 6960B, मैंने लाइक फाइनल लाइक उस पे आई थी मैं। तो जब लाइक 72C एंड 9D बाकी दोनों टर्म से लाइक लाइक काफी छोटे रहेंगे, तो अगर मैं उन लोगों को अप्रोक्सीमेटली अगर 100 से अगर मैं उनको डिवाइड करूँ तो आई विल गेट 46A इज इक्वल टू 70B। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करने का ट्राई करूंगी तो A3 B2 C1 एंड D4 आ रहा था। और सर दूसरा मुझे पॉसिबिलिटी आ रही थी जिसमें D0 है, बट D0 हो नहीं सकता, तो फिर पहला वाला 3 2 1 ही लिया मैंने। ओके, नॉट बैड। यस अभिजीत, एक्सप्लेन प्लीज, क्या किया बेटा आपने? सर उसे पूरे इक्वेशन में डाल दिया कि 8 स्क्वायर A और लाइक इंटीजर पार्ट के इक्वल होगा, और ये
बाकी का डेसिमल पॉइंट के बाद का पॉइंट के बाद। Very तो good. 64A प्लस 8A प्लस B इज इक्वल टू 12B प्लस B। तो B कट गया, उससे इक्वेशन आता है, उसको सॉल्व करना है। और फिर वैसे ही C और D के लिए उसका रेशियो, A और B का रेशियो मिल जाता है हमें। लाई ए और बी का रेशियो मिलता है, हाँ, Right. 3:2। तो हमारे पास वो 8 से छोटे होने चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, 3 और 2 और 6 और 4। Right. हाँ, फिर अभी उसका सी डी के लिए सॉल्व करना है, या C/8 प्लस D/64। तो इसके ए और बी के दो ऑप्शन मिल जाते हैं इस इक्वेशन से, 2 3 और 6 4। ये लेकिन एक मतलब फ्रैंकली मैं बोलूं तो मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये तो ए बी तो मेरे को यहाँ से कुछ आइडिया मिल ही गया है कि क्या हो रहा है। ये तो सॉल्व होना लेकिन सर ए बी के दो ऑप्शन है ना, हम 6 और 4 भी ले सकते हैं, 3 और 2 भी ले सकते हैं। ले सकते तो हैं। हमें सर्टीन होना पड़ेगा ना कि कौन सा लेना है। दोनों को हमने ट्राई किया, उसमें से हम लोग देख लेंगे नंबर्स को। ये तो सबसे होने चाहिए थे। नहीं, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम गई? क्योंकि ये जैसे आपने फर्स्ट ले आया नहीं, उसके बाद हाँ नहीं खत्म। जो फर्स्ट तो आना हमारे लिए बहुत सिंपल बात होती, क्योंकि इंटीजर वाले इंटीजर को इक्वेट होंगे, फ्रैक्शन जो जा रहा है वो फ्रैक्शन को इक्वेट होगा। तो दोनों में हमारे कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं था, सीधा का सीधा आंसर पे जाना था। राइट। ओके एवरीवन। यस। ओके एवरीवन। ए विजय। ओके। हाँ सर। डील। अक्षर। जयेश। ये सर स्टार्टिंग में दिखा ही नहीं। अमोघ। आरव। आर्यन। यस सर। रिद्धिमा। कार्तिक। दिया। ओके। ओके एवरीवन। राइट। तो द नेक्स्ट वन, राइट। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को IUPAC के आज करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें अभी हम लोग को और वर्किंग करनी है, राइट। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं सीधा अब आ रहा हूँ IUPAC के लिए, तो शायद यूल फील कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक मैं आइडिया ये मिल जाए आप लोग को। एंड आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, अपने अपने कैमरा को ऑन रखो प्लीज। राइट। प्रसम, रेडी? Yes, sir. A number n in base 10 is 503. तो 2020 का क्वेश्चन है ना? अरे वाह, 503 in base b, right? Number n is 10, right? 503, and 503 in base b, and 305 in base b plus 2, right? Number n, right, in base 10, 503 in base b and 305 in base b plus 2, right? We have to find number n with base 10. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि एंड उजान, आर्यन, आरव, रिद्धिमा, कार्तिक, दिया, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। मेरी कोशिश होती है हमेशा इस तरह के टॉपिक पे 3 लेक्चर लेने की रहती है। 3 से 4 लेक्चर में मेरे को कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट होता है बेसिक के लिए, सेकंड लेक्चर होता है थोड़ा सा जो हमारे बेसिक के ऊपर के क्वेश्चंस के लिए, थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर होता है जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा सकूं, राइट। तो अभी क्वेश्चन के लेवल हम लोग बढ़ा नहीं सके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेस नंबर का, राइट। तो नेक्स्ट वीक भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पे, देन विल गो अहेड। सर बेस लिखना है हमें, एन नंबर निकालना बताओ। हाँ, बेस ओके बी निकालना है या नंबर एन निकालना है, दोनों चीजें चलेंगी।
Sir, positive integers only. सर n की वैल्यू भेज दी आपको। Very good. You have to find n. Number n. You have to find number n with the base. Very good. Wow. It's a straightforward question, right? Moog. Aryan. Diya. Do it fast. Do it fast, everyone. Sir, yeah. Arav, check your calculation, beta. Check your calculation. यशु प्लीज बाहर जाइए। Where is my answer? Correct. यशु गो आउट ऑफ द रूम। Yes. Wow. Base B is right, beta. Base B is 7 is right. See the calculation on. सर एक मिनट सर सही है क्या? नहीं बेटा, नहीं लग रहा सही। अच्छा, आपको क्या चाहिए? तो मैंने n लिखा। सर फिर से देखता हूँ। सर बी की वैल्यू भेज दी। Very good. Now calculate the number. सर एन भेज दिया। Wow. Very good. This is a straightforward, simple question, right? Right. Only you have to find for base B. Fast. Everyone, fast. Do it fast. सर 248 है। 248. 48. Very good. Very good. Perfect. So should I solve this or सबके आ गए हैं? कितने लोग write down yes? Write down yes. In chat कितने लोग के आ गए? Write down yes. सर अब ठीक है क्या? नहीं बेटा. अच्छा Number is reverse itself, नहीं? वो विजय उसका नहीं, कुछ लोगों के बच गए हैं सर. Okay, let's see. This is 3 into b to the power 0 plus 0 into b, that's 0 only. 5 into b square is equal to 5 plus 0 into b to the power 1 plus 3 into b square. सर b plus 2 होगा ना? And in this case, the Sir, b b is plus 2. different. So then we have to write down b plus 2. So both the way this will be b plus 2, right? ये b यहाँ पर second वाले में मेरे change होके b plus 2 के लिए, right? Now I have to calculate value of the b की value क्या आ गई? 7. Yes, sir. Right. So मेरे को मिल गया 503 with a base 7, right? I have to convert this into 10, right? Simply I can convert 3 plus 0 plus 5 into 7 square, right? सही है? बट 14 सर अगर ये आयोक्यम का क्वेश्चन हो, अगर ये आयोक्यम का क्वेश्चन है तो 3 डिजिट में कैसे आंसर है? 5 into 35. नहीं बेटा, होता क्या है ना, 49 हमने यहाँ पर कर दिया, राइट? तो 49 is 50 minus 1, right? 240. मैं ऑब्वियसली राइट, ये मेरा एक तरीका रहता है। आईओक्यू में ये था कि ये तीनों का प्रोडक्ट क्या हो, मैंने लास्ट वाला नंबर नहीं दिया, आई टू मैच विद दिस कि राइट आपके नंबर मैच कर जाए, राइट? तो मैंने वो नहीं दिया, मैंने बोला कि नंबर आप निकाल दे, ठीक है? ओके एवरीवन। सर आईक्यू में बी निकालना था क्या?
नहीं, IQM का क्वेश्चन। 248 में तीनों का प्रोडक्ट निकालना था, 248 का, राइट। प्रोडक्ट तीनों के नंबर के क्या आ रहे, ये था IUQM 2020 का। 20 क्या बोलते हो, टफ बोलोगे इजी बोलोगे? सर टफ, उस एग्जाम के प्रेशर के हिसाब से टफ। कुछ प्रेशर तो अपने ऊपर है यार, लेना और नहीं लेना। मतलब सर जैसा टाइम फ्रेम है एग्जाम को, उस हिसाब से लेंगे। कुछ भी, हाँ ये क्वेश्चन लेंदी है कुछ भी, ये फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर। सर वो तो एग्जाम में, एग्जाम के हॉल में फ्री का नंबर है ना, वैसे तो थोड़ा लंबा ही लगता मानना नहीं चाहेगा तो अलग बात है बेटा, ये सब क्वेश्चन अगर हमारे को टफ जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत जाएगा। ये सब एकदम फ्री के नंबर हैं, ये नंबर नहीं आ रहे हैं तब हमें रीथिंक करना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन को लेके। ये परफेक्टली हमें थ्रो कर रहा है नंबर, अगर ये सब मिस करके हम आए तो आप देख चुके हो IUQM एग्जाम अब आपके लिए इतना सिंपल नहीं रहा जिस हाई स्कोर में। हमें एकदम पूरी तरह से ये होना चाहिए कि इस तरह की जो क्वेश्चन है वो तो हमें किसी भी हाल में निकालने ही पड़ेंगे, और ये सब बहुत ही सिंपल है, क्या टफ है? बी है। को टफ मतलब सर करना है। हॉल के हिसाब से ठीक है सर, जल्दी जल्दी हो जाता टाइम बचाने के लिए। एकदम आखिरी में कुछ नहीं आ रहा तो ये करो। समझ गया, समझ। विच कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द डिस्टिंक्ट पावर ऑफ 7, राइट। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, विच कंसिस्ट द सम ऑफ डिस्टिंक्ट पावर ऑफ 7, राइट। जैसे आप देखो, पहला है 7⁻0, दूसरा है 7⁻1, फिर 7⁻0 प्लस 7⁻1, फिर 7 स्क्वायर, फिर 7⁻0 प्लस 7 स्क्वायर, फिर 7⁻0 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7, ऐसा चल रहा, राइट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। At what position the number 16856 will occur? Right? Find product of the digits. सोचिए तो कैसे किया जा सकता है? सर जिस पोजीशन में आएगा उस पोजीशन की प्रोडक्ट ऑफ सर डिजिट्स। इसमें तो बेस नहीं है ना कुछ। बेस 7 पे काम कर रहे हो आप? सर इसमें हम 7 को, अगर हम इसको बेस 7 में ले लें तो 7 10 होगा, 4900 होगा, ऐसा कुछ होगा, 343,000 हो जाएगा, वेरी गुड, वैसा कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड, 5680 हो जाएगा वैसा। वेरी गुड, go for that, go for that, go for that. Maybe we'll get something from that, or anything we have to do with the sequence. सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 7⁻0 ना गिरे हम लोग? क्या बेटा? सर मतलब हर एडिशन में 7⁻0 तो आएगा ही ना? आएगा, मतलब all the sequences will come in that. एस्टिमेशन से कर सकते हैं। जो भी करना है कर सकते हैं बेटा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर मैंने जो भेजा वो मुझे आ रहा है आंसर। और थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम और लो, सर कि मेरे सम में तो 16857 आ रहा है इसलिए। और थोड़ा टाइम लो बेटा। कि अगर क्वेश्चन है तो गलत होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं ना, कुछ तो होगा जो हम मिस कर रहे हैं, राइट। जैसे इस तरह का कोई आंसर आया ना, तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ,
कहाँ तक वो मिस हो सकता सर मेरा करेक्ट है। है? दिस इज 7⁵ के रेंज में आएगा ना? ठीक लग रहा सर है ये 7⁵ प्लस 49 है। 7⁵ हाँ, परफेक्ट, सही है। हाँ सर यही आ रहा है, पर सर फिर वैसी इससे ही मिक्स पोजीशन कर नहीं रहा आ हूँ रही। मैं कि वेरी कौन गुड, से रेंज में सही आएगा। है। अनुष्का के आंसर सही है, मतलब आंसर आ रहे हैं। आप लोग सभी लोग ट्राई करो प्लीज, डू इट फास्ट। मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 2 मिनट। नहीं भेज सर, दी। सर पोजीशन मतलब यही ना कि 1, जैसे 8 थर्ड पोजीशन में, वो वाला पोजीशन ना? हाँ। ठीक है सर, फिर नहीं अभिजय, और सोचो बेटा। फिफ्थ पोजीशन मतलब हो गया आपको कि फिफ्थ नंबर, तो यहाँ देखो ना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर तो 50 है। सर 15 आया मेरे को। हाँ हाँ हाँ, लिखा आपने 5 है। नहीं सर, प्रोडक्ट निकालना था ना दोनों का। अच्छा 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 अच्छा, 15 आया आपको। आप प्लेसेस लिख दो चलेगा। प्रोडक्ट यस। आता है 15। 15th पोजीशन नहीं, आगे जाएगा। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहीं खत्म कर दिया मैंने 7³ पर। अच्छा हाँ सर, मैं थोड़े नंबर मिस कर दी। मैं स्टार्ट करूं क्या? सर बस आंसर भेज रहा हूँ। थॉट प्रोसेस लाओ, क्या किया जाए, कैसे वर्क किया जाए। आरव, सिमिल, आर्यन, जान, रिद्धिमा, कार्तिक, दिया। सर सही है क्या? नहीं सहज, ये आपने क्या निकालना था बेटा? सर मैंने पोजीशन, अच्छा पोजीशन का सम, सर प्रोडक्ट तो भेज मैं सर पोजीशन निकाला है, प्रोडक्ट कुछ नहीं। नहीं है, मेरी तो ये है। जील, हाँ चल, अभी तू बोला था नहीं आ रहा है चल। सर कुछ तो सब करके आ गया। सबको खूब, सबको बुद्धू बनाया तू ना, सही है, गुड। सर सही है क्या? हाँ सही लग रहा है। क्या पोजीशन आया लिखना? सर पोजीशन उसके नीचे भेजा। नहीं, गलत है, सब गलत है। मेरे को लगा वो जो लिखा है तुमने, वो जो प्रोडक्ट चाहिए था वो लिखा है। सर सर अब भेजना है तो ऊपर मेरा। भेजा है सर, पहला प्रोडक्ट है, दूसरी पोजीशन है। हाँ, वही बता रहा हूँ, गलत है। सर अब सही है क्या? ये प्रोडक्ट आपने भेजा है, हाँ सर। ठीक है, ये सही है। सर पोजीशन भेजता हूँ। फिर इसमें एस्टिमेशन से ही करना था कि कहाँ। इसका 50th पोजीशन निकालना है, इस नंबर का क्या आएगा? सर 50th पोजीशन। हम्म। तो वो तो 7⁵ जा जाके 7 के पावर्स निकाल के ऐड करना पड़ेगा, जो कि सर निकालता हूँ। सर इसमें पर बेस सिस्टम कहाँ से यूज होगा? कोशिश करके देखो, मैं तो सर करूँगा। भेजा। अच्छा आप तो कर लोगे सर। नहीं विजय, नहीं। स्टार्ट करूँ? इससे ऊपर है क्या? हम्म। सर पोजीशन इससे ऊपर है। सर मैंने आपको पोजीशन भेज दिया। हाँ देखा मैंने, और तुमने तो बहुत पहले ही भेजा था। गुड, वेरी हाँ गुड। वो प्रोडक्ट था रिपोजिशन। तेरे को एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन, तैयार रहना। सर मैंने तो सारे नंबर्स लिख के किया। अरे वाह, वाह। हिम्मत, वेरी गुड।
अनुष्का, तुमने क्या किया बेटा? सर मैंने सबको बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया तो सब 1010 के टर्म्स में आए थे और सबके सब हाँ, असेंडिंग आए थे तो काम वैसे ही हो गया। अगर बेस 2 में मैंने कन्वर्ट किया तो देखो पहला नंबर 0 आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया था? 1, राइट। नेक्स्ट इज 10, फिर 11, ये पावर दे रहा हूं मैं, राइट। इसके बाद का नंबर क्या आएगा? 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 100। फिर 101 फिर 110 101, फिर 110, फिर 11, 11 फिर राइट, 1000 1001 1000। अब हो क्या रहा है इसको देखो, वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छा सोचा बेटा आपने। ये है 7 टू द पावर 0, ये है 7 टू द पावर 1, ये नंबर है 7 टू द पावर 1 प्लस 7 टू द पावर 0। उसके बाद अच्छा हाँ, ये 2 के पावर में आ जाएगा, फिर सर लास्ट में 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 2 आएगी। राइट, ये नंबर जा रहा है मेरा, राइट। बट ये वाला नंबर क्या आप ले सकते हो? दोनों 1, क्या आपके पास जो नंबर आ रहा है वो लिया जा सकता है? हाँ, ये हमारे पास, क्या ये नंबर मैं ले सकता हूं? थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, राइट। दोनों नंबर मेरे सेम वाले जो हैं वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, या दोनों तीनों नंबर मेरे सेम वाले हैं वो मेरा वर्क नहीं करेगा। हर एक जगह पर अगर आप देखोगे तो जो नंबर आपके पास आ रहे हैं, राइट, जो नंबर आपके पास आए हैं, 01 आपने लिखा, उसके बाद 10 लिखा, राइट, 11 हमने, अगर पावर्स पे 7 के पावर पे जो नंबर्स हमारे पास हैं, तो क्या उन नंबर्स को लिखने के लिए, राइट, 7 स्क्वायर हमने लिखा, राइट, फिर 7 क्यूब पर मैं चला जाऊंगा, राइट। तो अब अगर मैं इन नंबर को इस सीक्वेंस में जोड़ रहा हूं तो वहां पर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, राइट। बट हमें ये यहाँ पर करना है कि जो हमारे पास पांच पोजीशन पांच पोजीशन ना, 7 टू द पावर कितना बताए थे? 7 टू द पावर 5 प्लस 7 स्क्वायर आया था ना। तो 7 टू द पावर 5 जो आया था उसके लिए 1, 2, 3, 4, ये पांच पोजीशन हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। भी लगेगा, हाँ, इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी थोड़ा है। लगा सकते हो आप, राइट। आप बोल सकते हो ये पांच पोजीशन पे 0 और 1 आपको फिल करने। हाँ नाउ सर, दूसरी तरीके से, तो यहाँ पहले वाले के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? दो है सर, सब में दो दो है। सेकंड के लिए 2 ऑप्शन है, 30। इसके लिए 2 ऑप्शन है, इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 2, मतलब 2 टू द पावर 5, 32 ऑप्शन टोटल आपके पास है। अगर हम पहले वाले को जीरो नहीं माने तो फिर एक ही ऑप्शन है। हाँ, तो अगर अब हमारे पास सब जा रहा है, हो ही सकता है पहला वाला 0 भी हो सकता है, तभी तो लोअर नंबर आ रहे होंगे। अब उसके बाद 32 ये आया, जिससे मैं 7 टू द पावर 4 तक के पूरे नंबर खत्म कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे को आना है 7 टू द पावर 5 के नंबर में, राइट। उसके बाद के जो नंबर है वो क्या क्या आएगा? 7 टू द पावर 5 आ गया, फिर 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 5 आ गया, फिर 7 टू द पावर 5 प्लस 7 आ गया, फिर 7 टू द पावर 5 प्लस 7 टू द पावर 0 प्लस 7 आ गया, राइट। उसके बाद का नंबर क्या होगा? 7 टू द पावर 5 प्लस, ऐसा कुछ। हाँ सर, कौन सा नंबर हुआ ये? 36 तो है सर। 7th पावर। राइट, यहाँ पर जस्ट खत्म किया था हमने 1000 पर, 32 पे अपना खत्म हुआ था। फिर 36। 36 क्या ये हाँ आया? मतलब हमने अगर कहा कि पावर क्या दिया, तो 1, 4, 0, राइट। तो ये पांच नंबर, अगर लास्ट वाले को हटा के पहला ये पावर दिया होगा, मतलब पहला नंबर जो मेरा रहा होगा, ये नंबर मेरे पास हो सकता है, राइट। फर्स्ट नंबर हमारे पास, राइट। फिर ये नंबर आया, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 11 आया, इसके बाद का नंबर क्या आएगा? 10100। यही नंबर है जो मुझे चाहिए था। और ये पहले के 32 प्लस कितने, क्या चाहिए था इस रैंक? 10 होगा, बीच में एक और जीरो आएगा। Sir, will the Zoom meeting automatically end in 1 minute because there is a timer on the top right of my screen? ओके, ओके। सर मैंने ऐसे किया था कि ये 2 की पावर में जा रहे हैं तो 7 जो है सेकंड नंबर है। तो ऐसे सर मैंने निकाला कि 7 टू दी पावर 5 प्लस 7 टू दी पावर 2
100 आ रहा है। वेरी गुड। उसका फिर मैंने बेस 10 में निकाला तो 34th पोजीशन आ रहा है। तो फिर सर जो नंबर है 16856 वो तो 34th पोजीशन पे आना चाहिए। जो आपने निकाला, ये नंबर निकाला जो हमारे पास जा रहा है 100100, ये वाले नंबर। हाँ सर। ये कौन सा नंबर हमारे पास आएगा? इसका पोजीशन हम देख रहे हैं। सर फिर मैंने बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट किया हाँ, तो सर 34 आया। ये 36 आ रहा है ना बेटा, ये एक और जीरो है यहाँ ना, 36 आ रहा है ना। 30 स्क्वायर है, हाँ सर 36 आएगा। टू द पावर 5 प्लस ये 2 स्क्वायर होगा ना। हाँ सर। हाँ 30, हाँ 36 ही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है। सर वो कैलकुलेट। 2 स्क्वायर को मैंने 2 ले लिया था। हाँ, गुड, गुड थॉट आरव, वेरी गुड बेटा। राइट। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप लोग रिवीजन एक बार कर लोगे। राइट। मैं विद इन एन आवर आप लोग को टेस्ट भेज रहा हूँ, बट रिवीजन अच्छे से कर लेना, देन विल गो फॉर दिस। ओके, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। राइट। कुछ क्वेश्चन है जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। कई क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए हुए हैं, वही क्वेश्चन होगा, तो ऑब्वियसली राइट थोड़ा आसान। सर सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो मैं आपको ऐड कर दूंगा बेटा, नो वरी। ओके सर।